تو ٹرمپ صاحب جن ممالک میں یہ ذخائر موجود ہیں ان سے اپنے تعلقات استوار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جس سے عالمی معیشت میں پائے جانے والے تناؤ میں کچھ کمی آئی ہے۔ معاہدے کے تحت چین نے نایاب معدنیات پر برآمدی پابندیاں مؤخر کرنے پر رضامندی ظاہر کی، وہ ایک برابری کی سطح پر، اور چائنا ڈیفینیٹلی معاشی طور پر ایک مستحکم ملک ہے۔ ٹرمپ نے شی جن پنگ سے ملاقات کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا، ورنہ یہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہے جو چائنا کو ببانگ دہل دھمکیاں دیتے تھے۔ اس وقت امریکہ معاشی طور پہ تقریباً کھوکھلا ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ امریکہ پاک اور چائنا دوستی کتنے عرصے تک چلتی ہے اور کتنے عرصے تک ٹرمپ صاحب اپنی زبان پر قائم رہتے ہیں، اور چائنا کو بھی پاکستان کی ہمیشہ سے ضرورت رہتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دردانہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ ود دردانہ شہاب۔ یہ تو ماننا پڑے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اچھے سیاست دان ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اچھے ایک بزنس مین ضرور ہیں، اور وہ اپنے بزنس مین سوچ کے ساتھ جو ہے وہ پوری دنیا سے روابط اپنے بحال کر رہے ہیں، اور جن ممالک کو انہوں نے پریشر دینا ہے اپنے ملک کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے یا اپنے کاروبار کو استحکام دینے کے لیے، وہ ان کو پریشر دے رہے ہیں، اور جن ممالک سے ان کو ہاتھ ملانا ہے ٹرمپ صاحب ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ روزنامہ جنگ کی خبر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کی ملاقات ہوئی ہے۔ روزنامہ جنگ لکھتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کی ملاقات مسافر، مسکراہٹیں اور سرگوشیاں۔ 6 سال بعد دونوں رہنماؤں کی پہلی بالمشافہ ملاقات۔ بوسان جنوبی کوریا میں 2 گھنٹے کی نجی نشست کا اہتمام۔ دونوں ممالک میں تجارتی جنگ بندی، ٹرمپ اور شی جن پنگ کا تاریخ معاہدہ۔ بوسان میں ایپیک اجلاس کے موقع پر 1 سالہ تجارتی جنگ بندی پر اتفاق ہوا۔ اس کے آگے لکھتا ہے جنگ کے عالمی معاشی تناؤ میں کمی آ گئی، چین نے امریکہ کو نایاب معدنیات کی برآمدات پر پابندیاں 1 سال کے لیے موخر کر دی۔ امریکہ بھی چینی مصنوعات پر اضافی 100% ٹیرف ختم کرنے پر رضامند ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے، یہ امریکہ اور چین کے درمیان جو ہوا ہے، اور یہ جب ٹرمپ صاحب نے اعلان کیا تھا تو ایک بہت ہی زیادہ تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی امریکہ اور چین کے درمیان، جو اب اس ملاقات کے بعد کم بلکہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ فیچر ٹائل سے متعلق ٹیرف 20% سے کم کر کے 10% کر دیا گیا۔ صدر شی جن پنگ نے پیش رفت کو اختلافات خاتمے کی جانب بڑی پیش رفت قرار دیا۔ صدر ٹرمپ نے اس موقع پر کہا کہ معاہدہ بہت کامیاب اور نتیجہ خیز رہا، نایاب معدنیات کا مسئلہ حل ہو گیا، تعلقات میں نئی راہیں کھلیں گی۔ اچھا، اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے امریکہ صدر ٹرمپ جو ہے اور کہا یہ بھی چاہ رہے کہ امریکہ کے جو ذخائر تھے، جو نایاب معدنیات کے ذخائر تھے، وہ تقریباً آلموسٹ ختم ہونے کی طرف ہیں۔ تو ٹرمپ صاحب جن ممالک میں یہ ذخائر موجود ہیں ان سے اپنے تعلقات استوار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس وقت وہ جو ہے کہنا چاہیے کہ امن کے فاختہ بنے ہوئے پوری دنیا کے لیے، اور وہ سو کالڈ جو ہے نا پیس میکر کہلا رہے ہیں، اور وہ جنگوں کو ختم کروا رہے ہیں۔ ہندوستان پاکستان کی جنگ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ نے 2 طرفہ ملاقات کے دوران تجارتی جنگ میں شدت کم کرنے اور 1 سالہ تجارتی جنگ بندی پر اتفاق کیا، جس سے عالمی معیشت میں پائے جانے والے تناؤ میں کچھ کمی آئی ہے۔ یہ ملاقات ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن ایپیک سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی، جو 2019 کے بعد دونوں رہنماؤں کی پہلی بالمشافہ ملاقات تھی، مطلب ایک 6 سال کے طویل عرصے بعد۔ معاہدے کے تحت چین نے نایاب معدنیات پر برآمدی پابندیاں مؤخر کرنے پر رضامندی ظاہر کی، جبکہ امریکہ نے چینی مصنوعات پر 100% مجوزہ ٹیرف ختم کرنے اور فینٹا نائل سے متعلق ٹیرف 20% سے گھٹا کر 10% کرنے کا اعلان کیا۔ یہ ایک بڑے اعلانات ہیں جو امریکی صدر اور چائنا کے صدر نے مل کر کی ہیں۔ ٹرمپ نے ملاقات کو شاندار قرار دیتے ہوئے کہا کہ نایاب معدنیات کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، جبکہ شی جن پنگ نے باہمی اختلافات کم کرنے کی جانب پیش رفت قرار دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے بعد کہا کہ چین فوری طور پر امریکہ سے بڑی مقدار میں سویابین اور دیگر زرعی مصنوعات خریدے گا۔ مطلب نہ صرف یہ کہ برف پگھلی ہے، اور جو دونوں ممالک نے سخت فیصلے کیے تھے ایک دوسرے کے لیے، وہ بھی اس میں بھی نرمی آئی ہے، اور تجارت کے نئے دروازے بھی کھل رہے ہیں۔ انہوں نے مذاکرات کے بعد اعلان کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان فینٹا نائل کی اسمگلنگ روکنے میں تعاون اور زرعی تجارت کے فروغ پر اتفاق ہوا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ یہ معاہدہ بہت کامیاب اور نتیجہ خیز رہا، اور اس سے دونوں ممالک کے تعلقات میں نئی راہیں کھلیں گی۔ چین کے وزارت تجارت نے معاہدے کی تصدیق کی، جس میں امریکی بلیک لسٹ کے
तौसी मंसूबे को मौखर करने और बाहिमी बंदरगाही फीसों को रोकने का फैसला शामिल है। अगरचे स्टॉक मार्केट पर इस माहदे का कोई बड़ा असर नहीं पड़ा, मगर तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये इकदाम अमरीकी और चीनी ताल्लुकात में वक्ती इस्तेकाम और तिजारती मुहाज पर जुज़वी जंगबंदी की अलामत है। अच्छा, इस वक्त दुनिया में जो है वो खाली असले और अस्करी जंग नहीं चल रही है, इस वक्त मीशत की भी बहुत बड़ी जंग चल रही है। और चूंकि अमेरिका सुपर पावर है तो वो बहुत से ऐसे ममालिक को यही मीशत के डरावे दे देकर जैसे अपनी हर तकरीर में वो हिंदुस्तान के लिए ट्रम्प साहब कहते हैं कि मैंने 25% जो टैरिफ लगा दिया है और उनको अंडर प्रेशर कर दिया है। उन्होंने रशिया से तेल खरीदने पर भी पाबंदी लगाई, इंडिया पर। बहुत सी ऐसी चीजें जो ट्रम्प साहब इस वक्त बज़ाहिर तो जंगबंदियों में मसरूफ आ रहे हैं, लेकिन माशी जंगबंदियां कहीं वो शुरू कर रहे हैं और कहीं वो उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ख़त्म वो वहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं जहां वो ये देख रहे हैं कि जो दूसरा मुल्क है वो उनसे कम नहीं तो उनसे ज़्यादा नहीं तो उनसे कम भी नहीं है, वो एक बराबरी की सतह पर। और चाइना डेफिनेटली माशी तौर पर एक मुस्तहकम मुल्क है, तो वो इसलिए उन्होंने चाइना के साथ अपने रास्ते इस्तेमाल करने शुरू किए हैं। 2019 के G20 सरबराही इजलास में जापान के ओसाका में मुलाकात के बाद पहली बिलमुशाफा मुलाकात थी। ये दोनों आलमी रहनुमाओं ने कैमरे के सामने मुसाफा और तारीफों का तबादला किया, कानों में सरगोशियां भी की, फिर 2 घंटे के लिए निजी तौर पर गुफ्तगू की। ट्रम्प ने शी जिनपिंग से मुलाकात को एक बड़ी कामयाबी करार दिया और इसका खैर मकदम किया। दरियासना चीनी वजारत तिजारत के एक तर्जुमान ने कहा कि चीन 1 साल के लिए मुत्तलका बरामदी कंट्रोल के इक़दाम पर अमल दरामद मअतल कर देगा और मखसूस मनसूबों का मुताला और इन्हें बेहतर बनाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इत्तेफाक राय इस हफ्ते मलेशिया में होने वाले तिजारती मराकज़ के बाद हासिल हुआ है। चीन दुनिया में इन मादनियात का सबसे बड़ा पैदा कुनंदा है जो मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और ये ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स और दिफाई सनतों के लिए इंतहाई अहम है। तो नाज़रीन, ये बात समझ में आ गई है कि इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं वो जिन ममालिक में पाकिस्तान पर भी उनकी जो मेहरबानियाँ करम नवाजियाँ जो हैं, तो वो किसी हद तक यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो मादी वसाइल हैं, और पाकिस्तान डेफिनेटली अपने मादी वसाइल से माला माल है उसमें। और कुछ अर्सा कबल जो है आपके फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो वजीर खारजा भी हैं, उन्होंने अमेरिका का जब दौरा किया था तो सैंपल्स लेकर गए थे जो वहाँ हमारी मुल्क में जिन मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं। तो ट्रम्प और अमेरिका में कहा जा रहा है कि ये ज़खायर ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ट्रम्प साहब इस वक्त जो है उनकी पूरी कोशिश है कि वो इन तमाम चीज़ों को मतलब उसी तरह से स्मूथ वे में अपने मुल्क के लिए या अपने लिए वो उन चीज़ों को उन ममालिक से हासिल कर सके, और चाइना से भी दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाने का उनका सबसे बड़ा सबब यही है। वरना यही डोनाल्ड ट्रम्प साहब है जो चाइना को बबांग दाहल धमकियाँ देते थे और ये कहते थे कि वो चाइना को हम ठीक कर देंगे, लेकिन जब उनको अंदाज़ा हो गया कि चाइना माशी तौर पर अमेरिका से इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मुस्तहकम पोजीशन में है, फिर उसके बाद उनको जो अभी पाक इंडिया वार हुई थी उसमें भी उनको अंदाज़ा हो गया था कि पाकिस्तान के पास वो प्रोफेशनल सोल्जर्स मौजूद थे और चाइना के पास बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद थी, और इन दोनों चीज़ों ने मिलकर जो हिंदुस्तान का हशर किया था वो दुनिया ने देखा था। तो सदर डोनाल्ड ट्रम्प को भी इस बात का अंदाज़ा है, क्योंकि इसराइल का भी मामला, अभी गजा का भी मामला बज़ाहिर तो नज़र आता है कि वो सेटल डाउन हो रहा है, लेकिन अभी उसको भी मुंतक़ी अंजाम तक पहुँचने में बहुत से मराहिल दरकार हैं, जिसमें उनको डेफिनेटली पाकिस्तान की भी ज़रूरत पड़ेगी, चाइना की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको पता है, ये बहुत बखूबी इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की जो पुश्तपनाही है उसको प्रोटेक्शन और उसको टेक्नोलॉजीज़ की फराहमी और तमाम चीज़ों में वो चाइना करता है, ये जानते हैं, दुनिया जानती है और ट्रम्प साहब भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो वो एक बहुत अच्छे सिफारती किरदार के साथ, सियासी किरदार के साथ इस वक्त वो बहुत अच्छे एक बिजनेसमैन तो वो है ही, और ये सब जानते हैं कि उनके बेसिकली तो वो बिजनेसमैन है और सियासत में वो आ गए और दूसरी बार वो सदर भी बन गए। तो वो अपनी बिजनेसमैन होने की जो सलाहियतें हैं उनको वो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए वो उनको डेफिनेटली वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो अपने मुल्क अमेरिका के लिए कुछ स्टेबिलिटी की सूरत हाल पैदा कर सके, क्योंकि ये पता है कि इस वक्त अमेरिका माशी तौर पर तकरीबन खोखला हो चुका है और उसमें मीशत की बड़ी अबतरी है और वहाँ पर नौकरियों का भी बड़ा मसला हो रहा है।
लोगों को जो फैसिलिटीज मिलती हैं उनको भी मैनेज करना बहुत मसला हो रहा है। फिर अमेरिका ने जो पूरी दुनिया में अपनी टांग अड़ाई हुई थी, हर मुल्क के ऊपर उसने उसकी फौजें नेटो फौज में थी, बड़ी बहुत बड़ी तादाद में, और जिस तरह से ये सारे काम जो होते करता रहा है अमेरिका, अब उस सारे काम ने ग्रेजुअली स्लोली अमेरिका को बड़ा कमजोर कर दिया है। और अमेरिका को कमजोर करने के बाद अमेरिका का सिर्फ रास्ता अमेरिका को यही नजर आता है कि अमेरिका अब जो है बजाय कन्फ्लिक्ट की तरफ जाए, तो वो अमेरिका जो है वो जैसे कहना चाहिए कि दोस्ती और प्यार मोहब्बत से दुनिया के तमाम मामला दुरुस्त करने के साथ साथ अमेरिका की मईशत को भी दुरुस्त कर सकते हैं, और उस पर ट्रम्प साहब जो है वो अमल पैरा है। अब देखते हैं कि ये दोस्ती और ये प्यार चीन और अमेरिका के कितने दिन चलता है, क्योंकि ट्रम्प साहब का कुछ भी पता नहीं चलता कि उनका मूड कब स्विंग कर जाए। जब वो स्विंग कर जाए तो उनका फिर कोई ऐसा बयान आ जाए जो इस नई बनने वाली दोस्ती में दरार का सबब बन जाए। अब देखते हैं कि ये अमेरिका पाक और चाइना दोस्ती कितने अरसे तक चलती है और कितने अरसे तक ट्रम्प साहब अपनी जबान पर कायम रहते हैं। चाइना को तो पता है, चाइना एक बड़ा बाउसूल मुल्क है। वो जो कमिटमेंट करते हैं तो वो अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं, और वो उनकी तरक्की का राज यही है, उनकी तरक्की का राज यही है कि वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं। उन्होंने आज अपने मुल्क को दुनिया के सामने जिस तरह से एक मजबूत हैसियत में सामने लेकर आए, आज पूरी दुनिया में चाइनीज प्रोडक्ट की जो है ना यलगार है, आज पूरी दुनिया में जो है चाइनीज टेक्नोलॉजी की यलगार है। और फिर पाक भारत जंग के बाद जो चीजें आई, फाइटर जेट्स और ये सारी चीजें, उन्होंने अलग चाइना की मार्केट को बढ़ा दिया। तो चाइना एक बहुत स्टेबल, स्ट्रॉन्ग और कैपेबल मुल्क है, और जिसमें कहना चाहिए कि उनकी सियासी अस्करी क़यादत, सियासी क़यादत और चाइनीज़ अवाम, वो सब बड़े डिवोशन के साथ अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम करते हैं, अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया में, जापान भी इसी तरह का मुल्क है, और जापान भी अमन पसंद मुल्क है। जापान का भी किसी से कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, वो भी अपने अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क की बका के लिए, इस्तेकाम के लिए, इसके लिए काम करते हैं। चाइनीज़ भी इसी तरह से काम करते हैं। ये और दीगर जो ममालिक हैं वो दूसरों के फंडों में, ये दोनों ममालिक चाइना जापान जो है कभी भी किसी के मामला में इन्वॉल्व नहीं होते। कभी किसी की भी वार हो रही है या जो कुछ भी होता है तो इनका अपना एक अलग स्थान होता है, जिसमें ये अपनी न्यूट्रल पोजीशन को रखते हैं। वो किसी के साइड भी नहीं होकर पार्शलिटी नहीं दिखाते हैं। ये दोनों ममालिक हैं, और यही वजह है कि ये दोनों ममालिक तरक्की याफ्ता है। अमेरिका बहादुर, चूंकि वो सुपर पावर हैं, तो उनकी तो आदत है कि किसी भी मुल्क का मामला हो, किसी भी दो ममालिक के दरमियान कोई भी कन्फ्लिक्ट हो, वो आ जाते हैं बीच में, या तो सालिसी के लिए या किसी एक मुल्क का साथ देकर दूसरे मुल्क को जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो चाइना और अमेरिका की समझ लें कि बहुत बड़ा फर्क है चाइना और अमेरिका की सोच में, और चाइना और अमेरिका के डेवलपमेंट में, और चाइना और अमेरिका की सिफारती और सियासी बसीरत में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसी वजह से चाइना आज ग्रेजुअली, स्लोली, विदाउट एनी फाइट, किसी से दुश्मनी ना लेकर, कुछ ना करके, ना सिर्फ अपने मुल्क को तरक्की दे रहा है, बल्कि अपने मुल्क को तरक्की के उस दहाने पे लेकर चले गए हैं जहां आप कम्पीट करना बहुत मुश्किल है चाइना को। और यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली लगता है ये, और जिसका अमेरिका को हमेशा से खदशा रहा है कि नेक्स्ट सुपर पावर जो है वो चाइना ही ना हो। और एशिया की तो समझ लें साउथ सेंट्रल एशिया की तो सुपर पावर चाइना ही है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। रशिया डेफिनेटली मजबूत मुल्क है, लेकिन आप अगर टेक्नोलॉजी के हवाले से और दीगर मामला में देखें तो चाइना है। और जब पाक चीन दोस्ती तो हमेशा से जिंदाबाद रही है, और जो पाकिस्तान की अवाम है और पाकिस्तान के जो सियासतदान है या पाकिस्तान की अस्करी और सिविल की क़यादत है, वो सब जो है चाइना के साथ दोस्ती पर फख्र करते हैं। और चाइना भी वो वाहिद दोस्त और वो मुल्क है वाहिद जो हमेशा पाकिस्तान के बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। इसलिए हम पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे हमेशा लगाते हैं, और हम ये समझते हैं कि चाइना की स्टेबिलिटी और तरक्की में पाकिस्तान को भी फ़ायदा है कि वहाँ पर स्टेबिलिटी और तरक्की रहे, और चाइना को भी पाकिस्तान की हमेशा से ज़रूरत रहती है। और वो ये समझता है कि पाकिस्तान में के अंदर वो पोटेंशियल है कि किसी भी मामले में, किसी भी मुहाज पर अगर पाकिस्तान की चाइना को ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा होगा। बहरकैफ अब देखते हैं कि ये नया माशी माहिदा जो है पाक चीन, अमेरिका और चीन के दरमियान, दो सुपर पावर्स के दरमियान, दो
बड़े ममालिक के दरमियान और दो जिसे कहते हैं कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मसलह में कहेंगे कि जो ममालिक है उन दो ममालिक के दरमियान ये माशी मुआहदा जो है कितने अरसे तक चलता है, और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली जंग किसी भी मसाइल का हल नहीं है, अमन में ही सब कुछ है। और अगर इसी तरह से आए ममालिक का अंडरस्टैंड करते हुए जियो और जीने दो की पॉलिसी पर अमल करें तो आज दुनिया से जो है जंग का खात्मा हो जाए और सब अपने अपने ममालिक की तामीर और तरक्की में इसी तरह से किरदार अदा करें कि उनको किसी को खौफ ना हो कि कौन सा दुश्मन उन पर आकर हमला कर देगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।